So students, in the last class, we studied that, um, see, assume this as plane of the board. Okay. So we have a charge Q moving in the plane of the board, right? So what's this plane of the board? So the axis that we have made is like this, x-axis, and then y-axis, and then that's our z-axis, right? So the particle is, so z-axis, so what this plane of the blackboard, or okay, so plane of the board is, plane of the screen is zx plane. So that zx plane is the plane of the screen, or it is also the plane of your book. Okay, plane of the page of your book. Okay, so it's plane of the page. Is this clear? So an object is moving in the z direction, so it is moving, so that's your plane. So object is moving with velocity v in the z direction, and in this plane the field is in y direction. So that's where field is. So this is your plane. So these cross shows that the field is entering the page, moving into the page, going into the page. Is this clear? Because you see the back of the arrow. If there were dots, it means what? Field is coming out of the page. Okay? Yes? So if there are dots, it means field lines are coming out of page, out of the plane of the page. Okay? So it means B, if you have dots, it means, so only two scenarios will be there, students. So if you have dots, then B, magnetic field lines coming out of the plane of the page. Okay, and here they are, so if they're coming out of the page, then it will be negative y direction. Here they are moving into the page. So field lines, if you assume this as whole page, so you can draw this cross anywhere on the screen. Okay, so that's your field lines entering into the page. So that's your B. So a charge Q with velocity v is entering this field. So assume this as your board. Field is inside, moving inside, and here this charge is entering. Okay, so this charge is entering right into the field. So obviously it is perpendicular. Yes, it is perpendicular to the field because the direction of field is y-axis and it is coming along the z-axis. So I discussed it yesterday. Here this force is equals to QVB. So V is along vertically, means along the z direction, vertical direction. So V is in this direction, so that is K cap, and B is along y direction, that is the direction J cap. So where will your force be? So the direction of force will be K cap cross J cap, that is minus I cap. So minus I cap means this is your x-axis. So this
minus x-axis. So the force will be this side. So force will be inside. Similarly here, force. So force, so velocity, see, direction of field is fixed. Only direction of velocity is changing, right? So the direction of velocity is only changing. So direction of velocity here is, when it was entering, k cap, then k cap to I cap, then I cap to j cap to again I cap. So I cap, j cap, I cap, j cap. So which plane which consists I cap and j cap? So xz plane, right? I cap और j cap मिलकर कौन सा प्लेन बनाएंगे बेटा? दिस I cap प्लस I cap माइनस I cap, ये तो x एक्सिस हो गया, और प्लस k cap माइनस k cap, ये आपका z एक्सिस हो गया. तो कौन सा प्लेन बना आपका? xz प्लेन. xz प्लेन क्या आपका? That is the plane of the screen or plane of the page. Got it? Now direction of velocity, that is so direction of velocity we have this, and direction of force will also be in the same k. You can see the force is in I k I k. So force is also in this plane, zx plane, and v is also. So if one is in z direction, other is in x direction. If one is in x, other is in z, zx, like this. Okay. So it means force is in this plane and velocity is also in this plane, zx plane. Is this clear? And force is directed towards the direction of force is changing, velocity is also changing, and it results into a circular motion. So simple thing, as the entering this particle and this, so this is all happening in the plane of your screen or plane of your notebook. It will keeps on moving in this direction. And if the charge is negative, if this q will become, if suppose instead of positive negative, so this will plus I, so it will move in this direction like this. Okay, so positive charge is moving in this direction, the negative charge will move in this direction. That's the only difference. Is this clear to you? Now so is this force? So what are the important points to note here in this motion? What are the key points to note? First point, you should know that if a particle moves in a circle with constant speed, that is called uniform circular motion. So motion is uniform, but it's circular. So that is why speed is constant. So v is constant. Speed is constant. So it means the net force acting on the particle is also constant in magnitude. So v is constant. This force acting on it is also constant. So which force is it? That is a centripetal force. Who is providing the centripetal force? Your magnetic field is providing this centripetal force here. So if you have a string and a stone is tied, who is providing the centripetal force here in this case? In case of the string. Yes? In case of string, this ball is moving around in the circle. You are here. So who is providing the centripetal force here? It's the tension in the string. If the earth is moving around the sun,
then gravitational force is providing this centripetal force. If on the road a car is taking turn or moving in circle, who is providing the centripetal force? It's the friction force. So centripetal force are provided by different forces. So here the centripetal force is provided by magnetic force. So, and you know that it is always at the center, and always the angle between force, you have seen that is I. If this is I, this is J. If it is J, then it is I. So means perpendicular to each other. So velocity and force, they are perpendicular to each other. Right? So now the important things that comes to the mind is, what will be the radius of this circle? We are always interested in knowing the radius of this circle in which it will start moving. Okay, so what will be the radius of the circle? What will be the velocity? Yes, you know it is constant. So what is it? On what factors it depends? Yes, so we are interested in finding the, and if it is circular motion, you know, you are interested in which variables? You are interested in radius here. You are interested in velocity. You will be interested in the frequency. You will be interested in the angular frequency. Yes, or angular velocity. You will be interested in the, so this frequency or this frequency is the same thing. Then you will be interested in the time period also. So these are the variables in which you will be interested in, right? So time period, frequency, angular frequency, yes. So let us start finding these variables. So so centripetal force. What is centripetal force? mv square by r. Who is providing the centripetal force? You can take the radius as small r also. So who is providing you the centripetal force? It is the magnetic force. So what is the magnetic force acting on charged particle? Q. So Q is equals to V cross B. Now what is the angle between V and B? Angle between V and B. So Q is equals to, so the magnetic force F is equals to, we are writing the magnitude here only. Of course the direction are, but still the magnitude is QVB, and the angle between V and B, that is sine 90. Yes, so sine 90 is 1. So whether you write it or not, it doesn't matter. So from here we get R and V. Okay, so 1V will cancel out, and you get V is equals to Q into B into, so V equals to, so what do you get, students? QB into R upon M. These are very important points. So you get the velocity, but, and we know it is constant. See, Q is constant, B is constant, R is constant, M is constant. So all of them are constant, and that is why this velocity is constant. Why do you people why don't you participate? Huh? I teach a lot of classes. See, all the students participate. What's the problem with you people? Huh? More you participate, more you will learn. Now what will be the value of R? So from here I have got this value of B. Now from here
You can find R also. Take R this side, QB be this side. So R is equals to QB upon MB upon QB. हाँ, चलो अब तो बोल रहे, वैसे मैं लिखा, मैं देखे अब बोलते हैं नहीं बोलते हैं. So MV upon QB. So see, this is also constant because MVQB, that's constant. See, all these variables are constant here because this is uniform circular motion. Okay. Yes, sir. So now let us find other variables also. Now let us just revise it again. We start with angular speed. Angular speed is equals to, that is angular displacement upon time taken. If this angular displacement is one circle, one rotation, 2 pi radian, then the time period of that rotation will be time period of the revolution, capital T. And capital T I can write also as a frequency. Write it like nu or write it like f, that's your choice. That's the same thing. So nu and f is the same thing. Now if you write it in this formula, then I call this omega as angular speed. But if you write omega is equals to 2 pi nu, then I will call omega as, because you are writing it in terms of frequency. So same symbol omega, I will call it angular frequency. Okay. So if you write this formula, this is angular frequency. If you write this formula, this is angular speed. So thing is the same, but how you are writing it? In terms of speed, if you are writing it, so it's angular speed. In terms of frequency, you are writing it, it's angular frequency. So, and angular frequency, you know its units, radians per second. Okay. Yes, here the units are radians and here the units are second. So its units are radians per second. Chalo. So students, now let us connect this thing and this thing. कैसे connect करेंगे इनको आपस में? Tell me how you are going to connect them. क्या चीज जो इन दोनों कनेक्ट करेगी? यहाँ V and omega. What is the relation between V and omega? ये आपको जरूरत है इन दोनों कनेक्ट करने के लिए. Relation between linear velocity and angular speed. याद आया कुछ? बेटा rotational motion V is equals to omega R. Yes. Okay. तो now एक ही बात है, आप V की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू पुट करो, that will be the same thing. तो यहां से आप ओमेगा यू कैन कैलकुलेट. तो ओमेगा इज इक्वल्स टू Q V by M. V by R लिख लो यहां से. ओमेगा इक्वल्स टू, यू कैन राइट V by R. R की वैल्यू यहां पुट कर दो, हाँ या ना? तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, V की वैल्यू क्या है? क्यू वी बी आर अपॉन एम, और ये भी आर डिवाइड हो जाएगा इसी से. यस. अब देखो कितनी मजेदार बात सामने निकल कर आ रही है इससे. क्या है मजेदार बात है क्या? आर से आर कैंसिल. यस. क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी? क्यू बी अपॉन एम. अब देखो कितनी मजेदार बात है ये.
कैसे है सर? मजेदार बात, इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आर। ये लो, वी और आर पे डिपेंड ही नहीं करती। ये क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है कि ये घूमता घूमता अगर ये स्पाइरल में भी घूमना शुरू कर दे तो इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है स्पाइरल में, हो रहा है नहीं हो रहा? और अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर वो, यानी कि हम एक चार्ज पार्टिकल है और उसको जो है उसकी उसकी हम एनर्जी चेंज करते चले जाएं, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एनर्जी तो चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, उसका रेडियस भी बढ़ेगा। अगर आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो क्या होगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो एक अगर बढ़ाओगे तो, अगर आपको समझ में आई कुछ बात? यस, देखो सर क्या कह यस स्टूडेंट्स, नहीं भाई, रोटेशनल मोशन वाला है ना, तुमने पढ़ा था 11th में। 11th में पढ़ा था आपने, क्या? बताओ बताओ, गुड। तो मीन जो एंगुलर स्पीड होती है वो सर्कल के रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। एंगुलर स्पीड सर्कल के रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, है पढ़ा था आपने। ओके गुड। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम पढ़ रहे हैं, इट इज इंडिपेंडेंट। अब देखो कैसे होगा ये क्या होगा, देखो ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। सो दिस इज योर फील्ड, बिल्कुल अभी जो हम कर रहे हैं, दिस अलोंग वाई एक्सिस, ये आपका प्लेन है, इसके अंदर जा रही है फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ये जो आपका प्लेन है, ये मैं फिर से बता दूं कौन सा प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है ना? कौन सा प्लेन है? ये प्लेन है आपका, ये एक्स और ये जेड, ठीक है? यस सर। तो और जो इलेक्ट्रॉन आया वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज क्यू पॉजिटिव, ओके। और हमने देखा कि वो यहां से क्या कर रहा है, सर्कल में मूव करना शुरू कर रहा है यहां से। नाउ व्हाट आई डू इज, अब पता ये तो एक्सेलरेशन पॉसिबल है नहीं, राइट? इससे तो एक्सेलरेशन नहीं हो रही ना, हो रही है एक्सेलरेशन, वी एंड आर आर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हो रही है क्या बेटा? बताओ ना, मानसी तुम ही बोल रही है, बाकी तो बोल लेंगे नहीं। इससे तो एक्सेलरेशन होगी नहीं, तो एक्सेलरेशन किससे होगी? एक्सेलरेशन किससे होगी? जब फोर्स लगेगी, नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इसके ऊपर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं तो उससे नेट फोर्स लग जाएगी, एंड एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दूंगा, समझ रहे ना? इसका चार्ज क्या, पॉजिटिव, तो यार नेगेटिव फील्ड प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा एकदम से? यस, एक्सेलेरेट होगा या नहीं होगा? इसके तरफ होगा, यस सर। तो इससे इसका रेडियस बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ते ही क्या बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ते ही रेडियस। ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। दो ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है किसमें, एक आर का और दूसरा इसका। एक मुझे ये बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ाओ तो रेडियस बढ़ेगा, अब रेडियस बढ़ गया, अब उतनी वेलोसिटी चलती रहेगी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है,
रेडियस बढ़ा दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाई जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का काम है सर्कल में घुमाना। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दे देता हूं मैं, और ये फील्ड क्या करेगी, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये फील्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो फिर से यहां नेगेटिव फील्ड, तो अब इसने फिर से क्या किया, इसकी स्पीड इंक्रीज कर दी। ओके, तो फिर से इसने इसका जो सर्कल था वो क्या हो गया, अब वेलोसिटी बढ़ती, सर्कल बढ़ा। फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, फिर से वेलोसिटी बढ़ गई, सर्कल बढ़ गया। फिर से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड देनी पड़ेंगी, क्रॉस्ड फील्ड, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए हाई चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। कैसे, हाईली चार्ज पार्टिकल्स, हाईली चार्ज नहीं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, क्योंकि वो बम्बार्ड करेंगे, पियर्स कर जाएं अंदर तक। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए आई वांट हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल, और हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स मुझे ये मैकेनिज्म दे सकता है। और सबसे खास बात ये है कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मुझे चाहिए, जब ये इसकी तरफ आएगी तो मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा, जब यहां से आएगी तो मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा, तो इससे इसको फिर से पुश कर दे। तो मतलब पल्सेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो डब्ल्यू भी फिक्स है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैं पोलैरिटी चेंज करता रहूंगा, और मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसकी पोलैरिटी मैं इसी के अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उसकी, सेम। यानी कि उसको एक सेकंड में, इसका सर इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब यह है कि उसे जितने रेवोल्यूशन पर सेकंड काटने हैं उतने ही चक्कर कटेंगे। तो पहले छोटा रेडियस था, वेलोसिटी कम थी, तो यहां से यहां मान लो वो एक चक्कर, 2 सेकंड, मतलब एक सेकंड में मान लो 10 चक्कर कटते हैं बाय चांस, तो बड़ा रेडियस हो जाएगा तो भी एक सेकंड में 10 चक्कर कटेंगे, और बड़ा रेडियस हो गया तो भी एक सेकंड में 10 चक्कर ही कटेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, वो आपके कांस्टेंट है। जब तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, उस चार्ज का मास कांस्टेंट है। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वो बीच में आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं प्रोवाइड करता हूं वो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करनी पड़ेगी इसको चार्ज करने की, तो वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, और उसकी फ्रीक्वेंसी मैं वही रखूंगा जो फ्रीक्वेंसी इसकी घूमने की है, यही फ्रीक्वेंसी। तो यही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, और यही फ्रीक्वेंसी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बस, तो ये जो प्रिंसिपल है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इस तरीके से आप ये इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कंसेप्ट समझ में आ गया? यस। सर, हाँ, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं समझ में आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते ही क्यू को क्या मिलेगा, फोर्स, और फोर्स मिलता ही क्या होगा उसका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। हमें हमारी नीड क्या है, व्हाट इज आवर नीड, हाई एनर्जी पार्टिकल अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सबसे पहली बात नीड समझो। हाई एनर्जी का मतलब क्या है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे। और ये खास बात है कि जब ये अगर मैं फील्ड कांस्टेंट रखता हूं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी की भी कर दूं, तो हर बार वो उसको पुश देती रहेगी, जैसे बीच में आएगा ये इस पे डायमीटर पे। बस, तो देख, हाँ अभी आइडिया है, इसको लिखवाएंगे पूरा, कोई इशू नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया लेकिन आपको? और टाइम पीरियड निकालना है तो आप टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास यहाँ है ही है ना। टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा आपके पास ये है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा,
टू पाई ओमेगा इज क्यू बाय बी, तो 2 πm बाय क्यू। तो ये टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी और ये रेडियस। तो स्टूडेंट्स ये 3 फॉर्मूले आपके काम के हो गए, 1 2 एंड 3। ओके, नोट इट डाउन, आराम से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, है बहुत इजी। ओके, तो इसमें 3 बेसिक इक्वेशंस कौन सी ली आपने इनको ड्राइव करने के लिए? वो बेसिक इक्वेशन यहां से आपने स्टार्ट किया, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल मैग्नेटिक फोर्स। इसको आप इक्वेशन नंबर ए दे सकते हो, जिससे आपको पता रहे कि ये गिवन चीजें हैं, ये ए रिजल्ट है, ये भी गिवन चीज है, ये आपको पता होना चाहिए बी, और तीसरा ये फार्मूला सी। तो ये 3 फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ए बी सी, ये तीनों चीजें आपको एक तरीके से गिवन है, और 1 2 3 क्या है, वो आपके रिजल्ट्स हैं। ओके, Yes, sir. note it down with complete understanding. And if there सर is, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बीच बीच में दे रहे हैं कंटिन्यूअस? ये सिर्फ हम डायमीटर पे देंगे बस, ठीक है ना, जो डायमीटर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो डायमीटर है ना आपका, इस पर देंगे हम बस। ओके, नहीं तो होगा क्या सर, मैं इसको देता रहूंगा। अच्छा एक बात है, अगर आप देते रहेंगे तो ये सीधा जाता रहेगा, फिर बढ़ाते रहो उसकी वेलोसिटी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो चार्ज पार्टिकल हमारा, इट विल बी आउट ऑफ आवर कंट्रोल, ठीक है। वाई सर? चलो, वाई आउट ऑफ कंट्रोल, आप उसकी चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर देते हैं। पहले आप नोट कर लो इसको, क्योंकि इसको स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी ना, फिर प्रॉब्लम होगी आपको नोट करने में। नोट इट डाउन, देन आई विल आंसर दिस। ओके, चलो, आई एम गिविंग 2 minutes टू नोट इट डाउन। ओके, Then please tell why we always apply on diametric. हाँ, हम डायमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों अप्लाई करते हैं? बस ये क्वेश्चंस आने आपके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस, सो आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, Yes, sir. I will answer all your questions. I want these questions. I want you to ask these questions. Then only you will learn in a better way. जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे, डाउट्स आएंगे आपके दिमाग में, दैट इज द ओनली वे आउट बेटा। वो डाउट दूर होंगे, आपको ध्यान रहेगा। अब आपको इच्छा है ना जानने की, कुछ डाउट्स हैं आपके दिमाग में, तो इच्छा है जानने की, तो इफ यू आर हंग्री और आपको न्यूट्रिशियस फूड मिल जाए तो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो उसी तरीके से अगर आपके डाउट्स हैं और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। राइट? Yes, sir. Noted it down? Shall we move forward? No, sir. Wait for 1 minute.
ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं यहां जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इट इज आउट ऑफ द पेपर। ये डॉट देख रहे हैं आप, क्रॉस का मतलब क्या था? फील्ड इनटू द पेपर, मूविंग इनटू द पेपर, मूविंग इन। ओके, अब क्या है डॉट का मतलब? फील्ड, फील्ड कौन सी फील्ड की बात हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की, आउट ऑफ द पेपर। क्योंकि अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? एरो का हेड दिखाई दे रहा है ना, ये टेल है एरो की। हेड का मतलब क्या है? एरो आपकी तरफ आ रहा है, कमिंग आउट, पहली बात। अब आप क्या करें, ये जो है आपने ये आपके पास एक डिब्बा है, ओके, बॉक्स, सर्कुलर बॉक्स। सर्कुलर बॉक्स आपके घर में जैसे नमकदानी होती है ना एक, मतलब इस सिलेंडर की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं होती, हाँ, 7 8 10 सेंटीमीटर होती है ना? अरे सर्कुलर कोई टिफिन होगा ना, यस, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मान लो बीच में से, तो ये दो सर्कुलर डी है, ठीक है। सामने से तो आपको ये 2D में मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो ऐसे दिखाई देगा ना आपको, लेकिन है क्या ये 3D। इज दिस क्लियर? तो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये है D1 और ये है D2, दो डीज हो गई है। इज दिस क्लियर? अरे अब क्यों नहीं बोलते? Yes, sir. ये बात समझ में आई? दो सेमी सर्कुलर डिस्क हैं ये, डिस्क लिख लो। D1 and D2 are two semicircular disc like metal containers, D1 and D2। लिखो, लिख लिया? D1 and D2 are two semicircular disc like metal containers, okay? अब ये मेटल के क्यों हैं? होलो मेटल हो गए ना ये, हाँ? होलो मेटल में आपको पता है ना, दे शील्ड द चार्ज पार्टिकल्स, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डिंग होती है नहीं होती होलो पार्ट में? Yes, sir. Clear. हम्म, तो इन डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ आराम से। इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर मोशन, अभी पढ़ा है ना? सो particle will go round in the circular path inside D। इस D में, तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपकी D है ये। तो इसको आप ऐसा करें, इसको दो कलर से बनाओ अपनी, जब आप बनाएंगे
तो 2 कलर से बनाओ इसको, या एक पेन से बना लो और बाकी पेंसिल से बना लो। तो इसको तो बनाओ आप यहां से, ये पेन से, ओके, ब्लू पेन से बना लो, ये फर्स्ट डी, और ये हो गई आपकी सेकंड डी, इसको भी आप ब्लू पेन से बना लो। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। अब आपके पास ये जो यहां मेरा पार्टिकल था और इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, और यहां से इसने क्या पाथ लिया? सर्कुलर। अब ये जैसे ही यहां आया तो यहां ये जो डी है, ये देख रहे हैं आप ऑसिलेटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने इनको डीज को कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो एवरी टाइम एवरी टाइम लिखो, every time the charge particle moves from one d to another, every time the charge particle moves from one d to another, is acted upon by इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इनको बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स। ओके, क्रॉस फील्ड है यहां पर। अब ये कैसे होगा? एक फील्ड को हाई पोटेंशियल पे रख लो, एक को लोअर पे। अब यहां आया ये पार्टिकल आपका, तो इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? इस डी पे, इधर वाली पे प्लस, ये पॉजिटिव चार्ज है ना आपका। जब ये पार्टिकल डी के बीच में आया, ध्यान से देखेंगे दोबारा, ये आपका जो पार्टिकल है, इट इज एट दिस पॉइंट, यहां पर। ओके, यहां है बीच में, ठीक है। तो इस डी पे कौन सा चार्ज रखना चाहिए मुझे? पॉजिटिव। और इस डी पे कौन सा चार्ज रखना चाहिए? नेगेटिव। यस और नो? तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? D2। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो D2 की तरफ जाएगा। अब ये यहां शील्डिंग शुरू हो गई अंदर, यहां फोर्स लगी इसके ऊपर, F इज इक्वल्स टू क्यू ई लगी, लिखो यहां F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ? पार्टिकल एक्सेलरेटेड, Q एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। स्पीड क्या हो गई इसकी? इंक्रीज हो गई। अब अच्छा एक बात तो, जैसे यहां गया इनसाइड D2 में गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड विच रिजल्ट्स सर्कुलर मोशन। इज दिस क्लियर? इनसाइड D2 लिख रहे हैं ना आप, ये सब स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, अब सर्कुलर मोशन हुआ यहां से यहां। नाउ अगेन द पार्टिकल्स, एज दिस पार्टिकल कम्स हियर, अब इधर जो मैंने पॉजिटिव दे रखा था, अब यहां कौन सा, आप बताओ कौन सा पोटेंशियल दूं मैं इसको? लोअर पोटेंशियल। और यहां कौन सा पोटेंशियल दूं? हाई पोटेंशियल। तो पोलैरिटी चेंज कर दी ना मैंने इस प्लेट की। यस, ये जो डी है, इनकी पोलैरिटी क्या कर दी मैंने? चेंज। ये ऑसिलेटर लगा रखा है ना, और ये उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है हमारा। इज दिस क्लियर? नो सर। अरे बेटे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई, इतनी सी बात समझ में आई, ये यहां से यहां गया,
हाँ सर। इसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब आपके पास ये सिचुएशन है और ये पार्टिकल इस फील्ड में एंटर कर रहा है, तो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। F is equals to QVB. ओके, सबकी डायरेक्शन लिख लो, यहां से पता लग जाएगा। V की डायरेक्शन मान लो ये है आपकी, यहां पर बना लो, ये X, ये Z, Y बाहर भी ले सकते हो इस बार, क्योंकि कमिंग आउट तो तो माइनस वाई हो जाएगा इधर, अंदर क्या था आपका प्लस वाई। चलो, V आपका X डायरेक्शन है, मान लो यहां की बात कर रहा हूं मैं, यहां जैसे इसमें एंटर हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आपकी, तो ये क्या होगी आपकी डायरेक्शन आई कैप, फील्ड की डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप, माइनस जे कैप है ना, माइनस वाई, तो करना क्रॉस इसका, क्या आएगा आई क्रॉस माइनस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है के, और आगे क्या लगा दिया माइनस, तो क्या डायरेक्शन हो गई फोर्स की माइनस के, माइनस के का मतलब ये के कैप था आपका, माइनस के क्या हो गया डाउनवर्ड, तो यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, तो जब यहां आएगा तो कौन सी फोर्स लगेगी इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, यहां होगा तो कौन सी फोर्स लगेगी इस तरफ, तो सर्कुलर मोशन हो गया नहीं हो गया यहां पर? हाँ सर। कोई बात नहीं, नए कंसेप्ट हैं, इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं है एक ही बारी में कोई नहीं सीख पाता, नए नए आइडियाज होते हैं, एकदम से माइंड को थोड़ा टाइम चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए, तो सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर मोशन मिल गया, यहाँ से फोर्स आपकी इधर लगेगी, जब यहाँ होगा तो फोर्स इधर लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स में सर्कल में घुमाती रहेगी, वर्क डन कुछ करेगी नहीं, क्यों? क्योंकि कितना एंगल है एफ के और वी के बीच में 90, तो वर्क डन 0 है, समझ गए, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। ओके, चलो अब मुझे ये बताओ, ये सर्कल में अब इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग नहीं रही ना, तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही उसकी, उतनी है, लेकिन जैसे ही वो यहां आएगा, ओके, अब मैं फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, जैसे डी के बीच में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ा सकूं धीरे धीरे। अब यहां से यहां आएगा, तो मुझे बताओ इस सामने वाली डी पे कौन सा पोटेंशियल होना चाहिए, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है ना, तो सामने वाली डी पे पोटेंशियल कौन सा होना चाहिए माइनस। माइनस, तो अब ये प्लस खत्म हो गया, इस पूरी डी पे एक ही चार्ज होगा एक टाइम पे, इज दिस क्लियर? तो यहां पे चार्ज क्या हो गया माइनस, अब और इधर इधर चार्ज कौन सा कर दूं मैं D2 पे प्लस, तो प्लस इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये यहां पहुंच गया यहां से यहां। अब ये यहां से यहां जो मोशन है ये लीनियर है मोशन, यहां से यहां, समझ रहे हैं, जिससे कि उसकी क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए उसकी स्पीड। अब वो कहां जाएगा, अब यहां जैसे अंदर एंटर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 हो गई, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है तो उसका रेडियस बढ़ चुका है। अब फिर से यहां आ गया, फिर से यहां आ गया, तो फिर से मैं उसको वही दूंगा, यहां से पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव, तो फिर से अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्या करती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये फोर्स है वो उसको एक्सेलरेट करती रहेगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी, और इनसाइड द डी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और बी प्रेजेंट, और वो उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करती रहेगी। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से आया, यहां आया, फिर से फोर्स मिला, रेडियस बढ़ गया, फिर से यहां क्यों आया, तो इसके सामने में दूंगा हमेशा नेगेटिव और पीछे से दूंगा पॉजिटिव, और इस बार क्या करूंगा उसको, जब वो यहां चला जाएगा तो डायरेक्ट जो है फिर वो इजेक्ट कर दूंगा मैं उसको, इस बार ये लगा रखी है मैंने डिफ्लेक्टर प्लेट, तो ये उसको मैग्नेटिक फोर्स को मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कुलर ना होके ये फोर्स ज्यादा है, जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे जो फोर्स है
और ये फोर्स उसको स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करेगी और ये कहाँ हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और ये आ गया मेरा चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी यहां बहुत ही कम थी, अब यहां पर ये मैनी फोल्ड इंक्रीज हो गई, वेरी लार्ज वेलोसिटी मिल गई। जो यहां वेरी स्मॉल थी वेलोसिटी, यहां क्या मिल गई, वेरी लार्ज। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली, काइनेटिक एनर्जी कितना, क्या होता फॉर्मूला, हाफ mv², ये होता ना फॉर्मूला। और v की वैल्यू निकाली थी ना आपने, कितनी निकाली थी बताओ जल्दी से, QB/m निकाली थी ना। तो यहां आर रियल के सिनेरियो में हम वो जो स्मॉल आर लिखा था आर्बिट्रेरी था, ये फिक्स्ड रेडियस तो आर लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, हाफ m/m²। तो ये आ गई स्टूडेंट्स आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। समझ में आ गई सबको बात जो यहां से इजेक्ट हुआ। तो अब यहां से जो मुझे चार्ज पार्टिकल मिला, आई विल बम्बार्ड द न्यूक्लियस विद दिस चार्ज पार्टिकल। ओके, चलिए अब आप इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है 4.3 जल्दी से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कर लिया आपने, यस? Sir, please wait. So we have example 4.3 students. What is the radius of the path of electron whose mass, इलेक्ट्रॉन का मास आपको दे रखा है 9 × 10⁻31 किलोग्राम, चार्ज आपको दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड। और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, दैट इज 6 × 10⁻4 टेस्ला। एंड द स्पीड एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों आपस में क्या है, V और B परपेंडिकुलर है। ओके, सो दे आर परपेंडिकुलर। और स्टूडेंट्स ये हमने आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 141 तक कर लिया है। इसमें एक वेलोसिटी सिलेक्टर टॉपिक है, उसको अभी आप रहने देना, उसको कल करेंगे हम। आप इसमें साइक्लोट्रॉन रीड कर सकते हैं, एक इसमें हेलिकल मोशन है वो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर मोशन हमने कर लिया है। तो सर्कुलर मोशन एंड साइक्लोट्रॉन, तो ये आप थ्योरी बुक से रीड कर लेना। ओके, और अपने नोट्स बना लेना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज का होमवर्क यही है, ये साइक्लोट्रॉन है पेज नंबर 141। तो इसके आपको नोट्स बनाने, इसकी थ्योरी सारी जो मैंने आपको समझाई है सब बुक में लिख रखी है, आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप इस सब बुक से पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का मन है कि हमें सीखना है तो बुक से इसके साइक्लोट्रॉन के नोट्स बनाना। तो ये जो है दिस इज द स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूमेरिकल में दे रखी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एनर्जी निकालनी है इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स आर आपको पता है फॉर्मूला यूज होगा, R इज इक्वल टू mv/qb, और यहां से आपका रेडियस आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। उसके बाद देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/2πr, और यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और उसके बाद जो वेलोसिटी आपके पास आई, वेलोसिटी को यूज कर लेंगे हाफ mv²। तो ये 3 फार्मूले लगेंगे एंड यू विल गेट इट। और इसमें जो है आप जो एनर्जी होती है उसको जूल्स की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल्स, ये आपको पहले से ही पता है। तो स्टूडेंट्स ये 3 फार्मूले इसमें यूज होंगे एंड यू विल गेट दिस। तो आपका होमवर्क यही है, ये अपना एग्जाम्पल करो, प्लस आपके पास SL हो रहा है मूव फास्ट, उसमें से आप साइक्लोट्रॉन रीड करो, ठीक है।
पेज नंबर एसएल और से एसएल के जो पेज नंबर्स हैं 271 एंड 272 एंड 273, ये पेजेस आपको करने हैं एसएल से। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें सब लिख रखा है, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम, थ्योरी, एज इट इज आपके नोट्स बने बनाए हैं, इसीलिए उसको रिपीटिशन का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, तो इसमें से वही है, बीच में वेलोसिटी सिलेक्टर है, आप उसको रीड करना चाहे तो कर लें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं तो हमें एक सिलेक्टेड वेलोसिटी मिल जाती है, बस इतनी सी बात है, वो हम कल कर लेंगे। होमवर्क समझ में आ गया? एसएल से बेसिकली यही सर्कुलर मोशन एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड, और उसके अलावा साइक्लोट्रॉन। तो इसके एनसीईआरटी से भी नोट्स बना लो, एसएल से भी नोट्स बना लो, और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको रीड कर लो एसएल में से। जितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रीड करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आंसर भी दे रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर समझो, और जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कल क्लास में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।